नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर दुनिया में छेड़ रखी है। ट्रेड वॉर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर ऐसे देशों पर जो भारत एक एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका को भेजता ज़्यादा गुड्स है और इंपोर्ट करता है कम, और ऊपर से जो कम इंपोर्ट करता है उस पर भी 15% से लेके 100% तक का टैरिफ भारत ने लगा रखा है। इस टैरिफ वॉर के कारण, अमेरिका के डर के कारण, बिजनेस के फेलियर्स के कारण या इकोनॉमी के फेलियर के कारण दुनिया में नई नई वर्ल्ड रिलेशन बनने लगे हैं, जियोपॉलिटिक्स चेंज होती जा रही है और उसमें बहुत बड़े बड़े यू टर्न हो रहे हैं। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल लेटेस्ट है, वो है चीन के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत को लेके क्या बोला है। इंटरनेशनल मीडिया की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग में, उसमें हालांकि वो 1.5 घंटे की थी, लेकिन मैं आपको एक ये छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद करते हैं बात। China-India relations have made positive strides over the past year. The successful meeting between President Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi in Kazan last October provided strategic guidance for the improvement and development of the bilateral ties. Both sides have earnestly followed through on the important common understandings of our leaders, strengthened exchanges and practical cooperation at all levels, and achieved a series of positive outcomes. China and India are each other's largest neighbors. China always believes that the two should be partners that contribute to each other's success. A cooperative pas de deux of the dragon and the elephant is the only right choice for both sides. As the two largest developing countries, China and India have a shared task to accelerate our country's development and revitalization. There is every reason for us to support each other rather than undercut each other, work with each other rather than guard against each other. This is the path that truly serves the fundamental interests of the two countries and peoples. As two ancient civilizations, we have enough wisdom and capability to maintain peace and tranquility in the border areas, pending a fair and reasonable solution. We should never allow bilateral relations to be defined by the boundary question, or let specific differences affect the overall picture of our bilateral ties. As important members of the Global South, we have the responsibility to take the lead in opposing hegemonism and power politics. We must not only safeguard the legitimate rights and interests of our countries, but also uphold the basic norms governing international relations. When China and India join hands, the prospects for greater democracy in international relations and a stronger Global South will improve greatly. This year marks the 75th anniversary of China-India diplomatic relations. China stands ready to work with India to sum up past experience, forge a path forward, and advance China-India relations on the track of sound and stable development. Thank you. इस क्लिप में आपने जैसा कि सुना कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो चाहते हैं कि भारत जितने भी चीन के साथ पुराने यादें, खराब यादें हैं, उन सबको भुला दे और उसके बाद अब शुरू करे नई जिंदगी या नए रिश्ते, और उन रिश्तों में भारत और चीन को दोनों को साथ मिलके आगे की लड़ाई अमेरिका से लड़नी चाहिए टैरिफ को लेके। अगर दोनों देश साथ आ जाते हैं तो वर्ल्ड पर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स है और वर्ल्ड रिलेशन है, उस पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में हम सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं पाकिस्तान के कमर चीमा जी का, उसके बाद करते हैं बात। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि चीन इंडिया का दोस्त बनना चाहता है? बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वांग जी, जो कि आपको पता है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें टर्म यूज की, ड्रैगन एंड एलिफेंट। देयर इज द ओनली राइट चॉइस फॉर इंडिया एंड चाइना कि इनको मिलके कोऑपरेट करना है। ये कभी नहीं कहा उन्होंने। दे नेवर यूज दिस टर्म, मे बी कभी माजी में की हो अच्छे ताल्लुकात के टाइम पे। अब वो कहते हैं देयर इज एन एवरी रीजन दैट ड्रैगन एंड एलिफेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है दोनों मुल्कों के लिए। अब चाइनीज दोस्त बनना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले चाइनीज कोई दुश्मनी कर रहे थे इंडिया के साथ। वजह क्या है? चाइना जो है ये जो क्या समझता है, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं है, लेकिन आई थिंक चाइनीज एक चीज समझते हैं, कीप इंडिया अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दे आल्सो बिलीव मे बी पाकिस्तान इज नॉट अ पार्टनर और नॉट अ फ्रेंड और नॉट दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर ऑन हुम चाइनीज कैन रिलाई बिकॉज ऑफ ये जो इंटरनल सिचुएशन डेवलप हुई है। क्योंकि एज पर द चाइनीज उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं, उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं चाइनीज के। इस पर मैं सारी बात करना चाहता हूं कि ये गेम क्या है। और अब एक लफ्ज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जो लोग स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, एक वर्ड होता है लेजिटिमेट।
वो कहते हैं जी हमें लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट जो हैं एक दूसरे के मानने चाहिए। अच्छा, अमेरिकन जब लेजिटिमेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके डिफरेंट मीनिंग है, जब चाइनीज लेजिटिमेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो डिफरेंट मीनिंग है। मिसाल के तौर पे अमेरिकन जब कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इट मींस जो हम चाहते हैं, जो हमारा व्यू है अकॉर्डिंग टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट। ठीक है जी, चाइनीज भी यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारे और आपके इंटरेस्ट हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में काम करने की जरूरत है। और एक उन्होंने फ्रेंच टर्म भी यूज किया, मुझे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट उन्होंने कहा पाराडॉक्स, जिसका मतलब है स्टेप ऑफ टू, दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। अब वो कहते हैं जी हम चीन के साथ, इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और माजी को भूलना चाहते हैं, साउंड एंड स्टेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। दिस इज व्हाट द चाइनीज हैव सेड, देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने ये कहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये टर्म बड़ी अजीब बात की है वैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। इसका मतलब तो ये है कि चाइनीज जो है वो समझते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ग्लोबल साउथ में बढ़ गया। वो कहते हैं जी कि आए चाइना और इंडिया मिलाए हाथ, ग्रेटर डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल। वो कहते हैं जी आप तो डेमोक्रेट हैं, ठीक है जी, ग्रेटर डेमोक्रेसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड ग्रेटर ग्लोबल साउथ भी इंप्रूव करेगा। यानी कि वो समझ रहे हैं कि आए मिल के चलें। इट मींस कि जो इंडिया के गेन्स हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, वो सारे के सारे गेन्स लार्जली अमूमन जो लोग हमें देखते हैं वो सारे वो उन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं जिन पे बड़ा शोर गुल, जिसे कहते हैं ना चटखारेदार टॉपिक। बट दिस इज समथिंग अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन द चाइनीज गवर्नमेंट, अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट। और वो कहते हैं कि अब कोई हमें इस चीज के लिए हमें कौन रोक सकता है, हमें अपने फंडामेंटल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, दिस इज व्हाट इंडिया वाज टेलिंग द चाइनीज एंड द चाइनीज वर नॉट लिसनिंग। डॉक्टर जयशंकर को आप सुने ना जरा पिछले 5 साल, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब कि हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस को डिफाइन नहीं करना चाहिए सिर्फ बाउंड्री क्वेश्चन से। मींस कि जो वहां पे चल रहा है ये वैसे वो मादर चाहता हूं, वो कहते हैं डुअल एज सोर्ड है। वो कैसे कि हमें बाउंड्री क्वेश्चन के जरिए अपने बायलैटरल रिलेशंस को नहीं जानना चाहिए। इसके मतलब 2 हैं। एक मतलब ये है कि यार बात सुनो, लेट्स मूव ऑन, वो चलता रहेगा। और इसका एक मतलब ये भी है कि वहां पर टक टक चलती रहेगी, जो हम कर रहे हैं वो अपने थोड़ी सी असर्ट करने के लिए ग्लोबल ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, लिहाजा उसमें अपना वो देखिएगा। इसके दोनों मतलब है कि आवर बायलैटरल रिलेशन जो है इट शुड नॉट बी गाइडेड और डिफाइंड बाय द बाउंड्री क्वेश्चन, बिकॉज बाउंड्री क्वेश्चन तो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये बात तो फिर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी आती है ना कि अच्छा ये बात हम भी कह रहे हैं इंडिया को कि यार उससे आगे चल के थोड़ा सा देखें, ठीक है, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ नहीं चलना चाहते, तुसी बंदे ठीक नहीं, तुसी जो है ना साडे मजे लेंदे रहे हो माजी। हम आपको कहते थे आओ बात करें, आप कहते थे पहले कश्मीर हुन ले लो कश्मीर, हुन करो साडे नाल गल। मतलब दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। बहरहाल ये क्वेश्चन जो है, ये जो बाउंड्री क्वेश्चन, वो कहते हैं इससे के जरिए प्लीज दे आर सेइंग डू नॉट डिफाइन डिटरमिन, इन चीजों को ऐसे ना करो, ठीक है ना जी। ये चीज जो है वो दैट इज देयर। अब चाइना जो है एक दूसरे की वो समझे, चाइना अब जो अब वो जैसे कहते हैं ना कामयाबी समझता है कि इंडिया हमारा यार बन गया, इंडिया हमारा यार बन गया और इंडिया को हम यार बनाना चाहते हैं। दोनों कहते हैं बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं। मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको ये पहले भी अपने एनालिसिस में एक दफा मैंने आपको बताया था, इन दिस चाइना इंडिया कन्फ्रंटेशन चाइनीज ब्लिंक्ड फर्स्ट। जितनी बड़ी वो ग्रेट पावर थे, जितने उनके ऊपर इंडियंस डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड, चाइनीज ब्लिंक कर गए फर्स्ट। उसकी वजह अमेरिका, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर गया इंडो पैसिफिक में तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। 1 सेकेंडली, जब इंडिया बार बार मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, तो व्हाई वी शुड फाइंड रीजंस टू पुश इंडिया टू द कॉर्नर। हम इंडिया को क्यों कॉर्नर पे लगाएं? हम इंडिया को क्यों कॉर्नर करें? हम क्यों उनको कॉर्नर करें भाई साहब, जब हमें पता है कि यार ये बंदा जो है या ये मुल्क जो है ये ठीक है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये जरा इस गेम को जरा समझिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस गेम को समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है चाइना इंडिया को साइडलाइन करने की, ठीक है ना जी। सो ये जो बात उन्होंने की है कि चाइना इंडिया रिलेशन जो है उनमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। और शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी की जो कजान में मुलाकात हुई थी लास्ट अक्टूबर, ये एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है। स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मींस कि जो डिस्कस हुआ था उसको जहन में रखते हुए हमने आगे जाना है। ये इसको जरा थोड़ा सा
अंडरस्टैंड करें प्लीज फॉर गॉड सेक। ये जो हमारे पायन है ना इधर उधर, हमने चाइना को खो दिया है, सच्ची बात तो ये है। वी लॉस्ट चाइना, पाकिस्तान लॉस्ट चाइना। हम मानते नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। या हम ये समझते हैं कि हमारा कोऑपरेशन इतना, देखें इन एनी पार्टनरशिप एंड इन एनी रिलेशनशिप बोथ द प्लेयर्स नीड टू बी सीरियस। दोनों को सीरियस होने की जरूरत होती है। ये थोड़ा ही होता है कि हम बहुत सीरियस हैं, आप नहीं सीरियस, कोई गाल नहीं खाया तो तुम ठहर के सीरियस हो जाओ, ऐसे थोड़ा ही होता है। और वो समझते हैं कि हम बड़े नेबर हैं, लार्जेस्ट नेबर हैं। और अब ये चीज जो है पास दी डॉक्स, ठीक है जी, मीन स्टेप ऑफ द टू। I don't know how to pronounce it in French. I didn't check it before, so ignore it. अगर जिनको फ्रेंच आती है या वो जो है ना, तो ये वो कहते हैं कि जी ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो काम करेंगे। और वो कहते हैं ये हमारी शेयर्ड टास्क है, हमें मिलके चलना है, दोनों मुल्कों को आगे लेके चलना है। सो दे हैव बीन ऑन दिस इंटरेस्ट, ये दोनों मुल्कों का इंटरेस्ट है। और दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, इनफ विजडम, हमारे पास बहुत अकल है। बेसिकली वो कह रहे हैं व्हेन चाइनीज आर सेइंग दैट वी आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस और हमारे पास काफी अकल है, इसका मतलब पता क्या है? वो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है पायन, व्हेन वी से वी हैव इनफ जैसे विजडम, इसका मतलब यह कि हमें बहुत अकल है, हमें अमेरिका से अकल लेने की जरूरत नहीं है। पायन इंडिया, आपको डू नॉट गेट गाइडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनसे गाइडेंस मत लो। उनसे गाइडेंस मत लो, और ये गाइडेंस का आपको नुकसान होगा, जो भी आप सो कॉल्ड गाइडेंस आप कह रहे हो या समझ रहे हो या जानना चाह रहे हो या देख रहे हो। सो ये एक इंटरेस्टिंग बाय द वे चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ग्लोबल साउथ के वो कहते हैं हम मेंबर हैं, हमें थोड़ा सा वैसे ही ज़रा ध्यान से चलना चाहिए। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड हाउ चाइना लॉस्ट इट। मतलब मैं तो कहता हूँ इंडिया का अपर हैंड है भाई। जो चीज़ें इंडिया बार बार उनको कहना चाह रहा था, आज चाइनीज़ खुद ही कह रहे हैं। इट मीन्स कि चाइनीज़ वापस आए हैं। ये लफ्ज़ इंडिया को कहना कि आपके पास बहुत विजडम है, आप बहुत अक्लमंद हैं, कि हम अमन के साथ रह सकते हैं और फिर हम रीजनेबल सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। सो बॉर्डर पे नहीं जाना हमने, अपने बायलैटरल रिलेशंस, ग्लोबल साउथ को आगे लेके जाना। और ग्लोबल साउथ में वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको एक इंप्रेशन ड्रॉ करके देने लगा हूँ। जब चाइना ये कह रहा है कि इंडिया और चाइना मेंबर है ग्लोबल साउथ के, इसका मतलब पता है क्या वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्योंकि इंडियंस बार बार मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं एशिया के अंदर। डॉक्टर जयशंकर क्या कहता है? डॉक्टर जयशंकर कहता है फर्स्ट देयर शुड बी मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया, इन आवर रीजन, देन वी कैन हैव मल्टीलैटरलिज्म। तो बेसिकली जयशंकर वांग जी को ये लेसन देता था कि तुम अमेरिका से तो कहते हो कि पावर शेयर करो, पहले हमारे साथ तो खित्ते में पावर शेयर कर लो। एंड दिस इज अ क्वेश्चन कि जहां पे अब चाइनीज कहते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम दोनों ने लेके चलना है। मतलब आओ ग्लोबल साउथ में पावर शेयर करें। लेकिन चाइनीज इस चीज को भी जानते हैं कि सारे के सारे ग्लोबल साउथ के अंदर जितना पैसा चाइनीज ने लगाया, इंडियंस ने तो नहीं लगाया। तो वो समझते हैं टेक्निकली हम ओवरप्ले कर जाएंगे। सो यहां पे वो अपनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, यहां पे वो इंडियंस को उनकी सॉफ्ट सपोर्ट लेना चाहते हैं, इंडियंस की। लेकिन इन रियलिटी उनको कहते हैं कि हमने फाइनेंशियली ग्लोबल साउथ में पैसा ज्यादा लगाया हुआ। तो देखेंगे क्या होता है। सो वो कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दूसरा वो कहते हैं आओ जो अपोजिंग हेजमोनिज्म है और जो पावर पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ चले। ये सर जी, ये मेरे ख्याल 100-150 वर्ड की उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। पर इसमें वो सारी, इसके ऊपर आप रिसर्च आर्टिकल लिखवा सकते हैं, इसके ऊपर आप टीवी टॉक शोज करा सकते हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखवा सकते हैं, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करा सकते हैं। यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि चीन के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा कि ड्रैगन एंड एलिफेंट वर्क टुगेदर, यानी कि ये सिंबलिज्म का ज़माने में उन्होंने ये बात कही है। ड्रैगन चीन के लिए और एलिफेंट इंडिया को कहा जाता है। तो इंडिया के लिए इन दोनों देशों को मिलके पूरी दुनिया से जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर है, एक नए तरीके का युद्ध, जो कि ना मशीन गन गोला बारूद से लड़ा जा रहा है, सिंपल टैरिफ लगा के, टैक्सेस लगा के पॉलिटिक्स में ये लड़ा जा रहा है। आज का ज़माने की जो युद्ध है वो युद्ध कोई
जैसे रूस यूक्रेन वॉर है, इस तरीके के युद्ध आजकल कम होते हैं। जो समझदार देश होते हैं वो इस तरीके के युद्ध लड़ने की बजाय इकोनॉमी के युद्ध लड़ते हैं, जैसे कि भारत लड़ता है। और भारत ने इस युद्ध को जीतते हुए पाकिस्तान को बिल्कुल साइड में दीवार से लगा दिया है। इसी तरीके का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी जी को देख के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कैंपेन में अमेरिका ऐसे दूसरे देशों, सभी देशों पे टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगाया गया है अभी तक वो 20% चाइना के ऊपर लगाया गया है। हालांकि उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पे भी लगाया था, लेकिन उसको 2 अप्रैल तक होल्ड पर डाल दिया, जबकि चाइना पे जो टैरिफ है एक्स्ट्रा वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया गया है। भारत के ऊपर भी जो एक्स्ट्रा टैरिफ है, यानी कि एक्स्ट्रा टैरिफ तो नहीं कहूँगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे या रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जिन चीज़ों पर भारत 100% अगर टैक्स लगाता है अमेरिका के गुड्स के ऊपर, तो अमेरिका भी उन गुड्स के ऊपर भारत के ऊपर 100% का टैक्स लगाएगा, जो कि एट प्रेजेंट में 2.5 से 5% का है। तो ये इसका इफेक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ता है क्या नहीं, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन जो यू टर्न आया है वो चीन की विदेश नीति में आया है। चीन जो पहले एग्रेसर होकर सारे अपने अड़ोस पड़ोस के देशों पर जमीन घेरने, देशों पर आक्रमण करने की प्लानिंग करता था, अब वो ये प्लानिंग कर रहा है कि भारत अपने चीन के साथ जितने भी पुराने रिश्ते, यानी कि चीन भारत का जो युद्ध हुआ था उसको भूल जाए, डोकलाम हुआ उसको भूल जाए, सिक्किम में जो गतिविधियां चलती रहती थीं उनको भूल जाए, और लद्दाख में जो हुआ उनको भूल जाए, और हम एक नई शुरुआत करते हैं। एलिफेंट एंड ड्रैगन दोनों को साथ में काम करना चाहिए। दोनों बहुत पुरानी सभ्यताएं, और इन सभ्यताओं के देशों के पास नॉलेज का अपार संभावना या कुएं हैं, यानी कि लोग बाग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो दोनों देश अगर मिलकर काम करेंगे तो हम अमेरिका को पछाड़ सकते हैं। इसी सीरीज में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यूरोपीय यूनियन के 27 जो उनके हेड्स थे या जो उनका प्रतिनिधि मंडल था वो भारत आया था, और 27 के 27 देशों के प्रतिनिधि मंडल को चाहिए था कि वो भारत से व्यापार में और एग्रीमेंट्स करें। तो दोस्तों, आपका अगर इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स, ग्लोबल रिलेशन में, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी नया वीडियो भारत से रिलेटेड, ऐसी दुनिया की कोई भी खबर जिसका भारत के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ऐसी हर घटना को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आपके टच में बने रहेंगे, आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। तब तक के लिए अगले वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।